Awesome. So we'll send you the recording also in case you want to revise the lecture. This class will be, I want you to pay attention. This, you have attended a lot of, I'm sure you have attended a lot of online classes, but this is going to be different. Most of you, few of you were there in my Sundays workshop, and I hope we had a great time. And most of you, and few of you were not there in that class also because of, could be any XYZ genuine reason. I trust my students. If they would have a genuine reason, then only they are going to miss my class. Now, in that class, we did something very, very fantabulous. We built a very strong base about one single concept, that is about the slope. मैंने पूरे लेक्चर में एक ही कॉन्सेप्ट पढ़ाया, दैट इज द स्लोप ऑफ अ लाइन एंड द कर्व एंड व्हाटएवर इट इज. नाउ इन टुडेज लेक्चर विल एक्सटेंडेड फ्रॉम देयर. हम आज वहीं से शुरू करेंगे जहां पे हमने कल का संडे का लेक्चर क्लोज किया था. नाउ दिस इज अ 40 मिनट सेशन. आई वांट यू टू पे अटेंशन. मैं अभी ऑन, आप सब अपनी कॉपीज में मैं एक यूजर नेम पासवर्ड डाल रहा हूँ फॉर द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्लास, जो इमीडिएटली शुरू करेंगे हम द मोमेंट दिस क्लास गेट्स ओवर, बिकॉज ये रैंडमली खत्म ना हो जाए क्लास. सो आई एम गिविंग यू द चार्ट पे देख लो. आई एम गिविंग यू द यूजर नेम एंड पासवर्ड. सो डोंट स्क्रू दैट, एल्स आपका सेकेंड पार्ट मिस हो जाएगा क्लास में. This is the username and this is the password. अपने पास अभी नोट करके रख लो मेरे बच्चे. This is for the second part जो अभी एकदम से शुरू करेंगे when this 40 minutes gets over. ये Genesis का 20 का नंबर है and Genesis is the password. So it's very easy to remember also. शौर्य उतार लिया बेटा? Awesome. You can just make a thumbs up. Awesome. So last warning to all of you to switch on your videos. My teammate is also there. हमारी admin की team भी इसमें meeting में है. So they will start putting you in the waiting room if your videos are not on, except जिन बच्चों का मैसेज चैट पे आ चुका है कि हम अपने इस रीजन से वीडियो ऑन नहीं कर पा रहे, एंड फिर आपका लेक्चर खराब हो जाएगा. आई डोंट वांट दैट बेटा. योर कैमरा इज नॉट वर्किंग. योर नेम इज आईफोन. हाउ इज आईफोन्स कैमरा नॉट वर्किंग? ओके. सो गुरमन, तेरे तू गुरमन, क्या तू सन के अंदर बैठी है? नहीं सर. Okay, I'm just kidding. Okay, guys, shall we start now? Shall we start? Yes, sir. Okay, Yes, sir. let's begin, guys. Let's begin. I'm Shirza. Okay, Shirza बेटा. Shirza, तू तो इतनी बढ़िया बच्ची है, मेरे पड़ोस में ही रहती है. हम मिलते रहते हैं, हम तो सैर करते हुए. Okay, now understand this, guys. We're starting with the lecture now. Now. I am hoping nobody's parent is around you. आपने मुझे झूठ नहीं बोला. I trust all of you. ठीक है, perfect बेटा, not an issue, Shirza. Now listen to me very carefully. We're about to start. जिन का लेक्चर संडे का मिस हो गया था किसी भी रीजन से, did you guys copy the notes? Because if you have not copied the notes, if you have not studied the notes, तो फिर लेक्चर आपके ऊपर से निकलेगा. Then आप सुन लो, but then I will not be able to give you a guarantee that आपको समझ आएगा. Because I remember a lot of you who attended the class. I think Kashish was there in the class, Gurman was there, Dhairya was there, Adrika was there, I think Ashit was there, Chirag was not there, Khwaish was not there, Shirza was there, Shaurya Vats was there, Angel Yadav, I'm not sure you were there. I think you were there or you're not there. I don't remember. So Vidhi, you were there. I think that अपनी वो पुरानी बच्ची नहीं थी जो पीसी पे. Japleen was not there, I think. So in case if you have not attended the Sunday's class and you have also not bothered to copy the notes, then काम खराब है. तो कम समझ आएगा. मैं पहली क्लियर रिपोर्ट. If you have attended the Sunday's class and you have revised it, मजेदार होने वाला है. If you have not attended the Sunday's class but you have copied the notes and you have gone through them, so you'll get to know better things. Am I clear? Clear? Awesome. So let's begin with it. घर वाले भी कह रहे होंगे जेनेसिस को क्या हो गया, सनक गए जेनेसिस वाले क्या रात को पढ़ा रहे हैं. So this is going to happen now. lot more बच्चे. So अब क्या होगा, once you guys, I am counting the attendance. My team is noting down the names. Saksham, you can keep yourself on mute बेटा. So होगा क्या मेरे बच्चे, I'll mute every one of you. मैं भूल गया कैसे करते हैं. Give me a minute. I don't know. Yeah, you guys keep yourself on mute, beta. For the moment I forgot. बहुत दिन बाद कोई online class हो रही है मेरी. So what is going? हाँ मुझे याद आ गया. Awesome. So I mute all of you. जब तक जरूरत ना पड़े आप unmute नहीं करोगे अपने आप को. Permission आपके पास रखी हुई है मैंने. Now what is going to happen is I will be taking a lot of these workshops over the next few months. Online mode पे करेंगे as everybody can attend as per their location.
you have to be regular in my workshops, else उसके बाद एक point के बाद if you're not regular, I'll not allow you for the workshops because these are beyond Genesis. This is for you because you're a part of my family, you're a part of Genesis army, and I'm trying to build Genesis in a way that बिकॉज हमारी कभी दिल से हार्ट टू हार्ट बात नहीं हुई, सो इट्स लेट मी टेक दैट ओकेजन. सो मुझे आप लोगों को एम्पावर करना है दिमाग से. आपको अक्षय सर पढ़ाते हैं आपको सबको, सो ही इज ऑलरेडी वेरी गुड टीचर, अच्छा पढ़ाते हैं, बट इट्स जस्ट दैट कि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें मुझे अपनी ऐड करनी है जो मेरे को एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत है, छोटी मोटी फिजिक्स मुझे आती है जो क्लियर है. दैट इज वाई दीज वर्कशॉप्स विल कंटिन्यू टू हैपन. Now listen to me very carefully. It's not like you are watching a YouTube or some podcast that you attend the workshop. There will be homeworks also, and that will come in your groups. And I'll take the submissions on my personal WhatsApp. So what I'm going to do is एक WhatsApp group बनेगा जिसमें मैं हूँगा. उसमें वो जेनेसिस का ऑफिशियल ग्रुप नहीं होगा, बट इट इज माई व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें आई विल बी इंटरेक्टिंग विद ऑल माई नाइन्थ आर्मी, इंटायर जेनेसिस आर्मी. Am I clear? And I'll start preparing you for a lot of things. It would be Olympiads also. It would be some advanced level physics also. It would be for life also, some life skills also. That is how I used to mentor in my regular classes. Since I'm not taking any regular batch in an offline mode, so I thought let's build that amazing ninth class student community. Also something very interesting. कुछ क्लासेस ऐसी होंगी जिसमें मैं आपको अलाउ करूंगा, आप किसी भी फ्रेंड को जो आपका बेस्ट फ्रेंड है जो जेनेसिस नहीं पढ़ता उसको ला सकते हो ऑनलाइन क्लास में, but provided he or she is a disciplined student. But that will happen in the next week. So, but only a genuine student who you feel deserves that kind of a mentoring. Now, without wasting any further time, I'm pairing my tablet with my Mac. So then I'll write on tablet, and notes बनाने की जरूरत अभी नहीं है, जब मैं बताऊंगा. And इस सारे tablet की जो मैं tab पे लिखूंगा, I'll send you the PDFs by tonight only. ठीक है? And you can make your notes. चलेगा? ऐसे कर दो, चलेगा तो ऐसे कर दो. Awesome. I guys love you guys. I'm so excited to teach ninth class after so damn long years now. So let me just pair. Give me 30 seconds now. iPad. हो जा बेबी को पेस पसंद है. Okay guys, awesome. So can you see my tablet? Adrika, you will raise your hand. I am able to see you because मैंने alphabetical wise arrange किया हो सबको. Okay, awesome. Adrika, just thumbs up. You can see my tablet. Awesome. Adrika, thank you, beta. So guys, thank you, Chirag. Okay guys, let's get started now. Now, फटाफट से डिस्कस करेंगे मेरे बच्चे. First, I'm going to start with, I want you to pay attention. We're going to start with, we call this as position time graphs. हम फिजिक्स की लैंग्वेज में बच्चे इसको पोजीशन टाइम बोलते हैं, लेकिन नाइन्थ क्लास की लैंग्वेज में टीचर्स पोजीशन वर्ड बहुत कम यूज करते हैं. दे यूज द वर्ड डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स. एट टाइम्स दे आल्सो यूज द वर्ड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. बट बेसिकली व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट इज पोजीशन टाइम. इसका मतलब क्या है? मेरी बात प्लीज आंसर ना. पूरा फोकस है पढ़ाई के टाइम, फिर पढ़ाई करेंगे बेटा. बेटा किसी चीज की पोजीशन निकालने का मतलब होता है उस बॉडी को ट्रेस करना कि वो कहां पे है, उसकी लोकेशन क्या है. मेरी हम्बल रिक्वेस्ट सिर्फ एक है, लास्ट बार रिक्वेस्ट करो, इसके बाद ब्रेक नहीं लूंगा पढ़ाई में. प्लीज बेटा शिद्दत से सुनना मेरे बच्चे. क्लियर है? द ओनली रिक्वेस्ट आई हैव इज, मैं पूरी शिद्दत से टाइम निकाल के आप लोगों को मेंटर करूंगा, बस आपने शिद्दत से सुनना है और डाउट्स पूछना है बेटा. क्लियर है? कैन आई ट्रस्ट यू ऑल ऑफ यू? कैन आई ट्रस्ट माय जेनेसिस नाइन्थ आर्मी? कैन आई ट्रस्ट यू? ऑसम गाइस, लव यू. पोजीशन का मतलब होता है मेरे बच्चे बॉडी पोजीशन मतलब, मैं पूछता हूं, मेरी बात ध्यान सुनना. पोजीशन का मतलब है मेरे बच्चे बॉडी कहां पे है. और फिजिक्स में पोजीशन का मतलब होता है मेरे बच्चे, या मैथ्स में और फिजिक्स में पोजीशन का मतलब होता है बेटा कोऑर्डिनेट्स ऑफ द बॉडी. क्या? कोऑर्डिनेट्स ऑफ द बॉडी. प्लीज पार्डन माय हैंडराइटिंग. कोऑर्डिनेट्स का मतलब है, अगर मैं आपको बोलता हूं मेरी जान, एक कार्टेशियन प्लेन है और एक बॉडी है इनिशियली यहां पे. मान लो हम ये बात करते हैं कि आशत यहां पे था इनिशियली, और थोड़ी देर के बाद मैंने इस आशत को फिर देखा और आशत यहां चला. व्हाट हैज चेंज्ड? द पोजीशन ऑफ आशत विद रिस्पेक्ट टू टाइम. आई थिंक वी ऑल अंडरस्टैंड दिस. टाइम रिस्पेक्ट में हो सकता है
4 बजे आशित यहाँ था और 4:10 पे आशित यहाँ था. तो what has changed? The Ashit's position has changed with respect to time because 4 से 4:10 हुए. So we would say definition of motion क्या है? Body is said to be in motion when the position of the body changes with respect to time and reference point. Reference point का यहाँ पे मतलब हो गया बेटा कि कोई ऑब्जर्वर है, मे बी यहाँ से चिराग आशित को देख रहा है. ये चिराग है. चिराग इज वॉचिंग आशित कि यार ये लड़का पहले रेड वाली पोजीशन पे था, ये उठ के यहाँ से यहाँ चला गया है, तो हिज पोजीशन हैज चेंज. तो आद्रिका चिराग से पूछती है कि यार एक बात बता चिराग, वॉज आशित इन मोशन? तो ऑब्वियसली चिराग विल से ब्रो यस आशित इज डेफिनेटली इन मोशन बिकॉज बिकॉज धैर्य क्योंकि आशित विल से सॉरी चिराग विल से क्योंकि द पोजीशन ऑफ आशित हैज चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम. आद्रिका कहती है तेरे को तो जेन्युइनली फिजिक्स आ गई है, क्या बात है, तेरे को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए. तो चिराग से यू नो व्हाट आई एम अटेंडिंग रात को लेट नाइट साइंसेस क्लासेस, तो ऑब्वियसली मुझे तो फिजिक्स आ ही जाएगी. तो कमिंग बैक टू दिस, व्हाट हैज चेंज्ड? पोजीशन हैज चेंज्ड. तो मैंने से पोजीशन, अगर मैं ये बोलता हूं आशित पहले था 2,0 पे और अब आशित है 4,0 पे, तो व्हाट हैज चेंज बेटा? द पोजीशन हैज चेंज. हमें कैसे पता लगा? बिकॉज द कोऑर्डिनेट हैज चेंज्ड. आर यू गाइस विद मी? मुंडी हिलाते रहो बस. ये सुनो, मैं चार्ट पे देख रहा हूँ सबको, मैं आई कैन सी द स्क्रीन्स. मेक सेंस? नो व्हाट हैज हैपेंड? जब भी वर्ड फिजिक्स में मैथ्स में पोजीशन आएगा तो आपका उसका ये मतलब है कि ही इज टॉकिंग अबाउट द कोऑर्डिनेट ऑफ द बॉडी. मेरे बच्चे, द कोऑर्डिनेट ऑफ द बॉडी. मैंने से कोऑर्डिनेट मतलब अगर मैं बोलूं एक बॉडी इनिशियली 2,5 पे है, प्लीज पे अटेंशन, एक बॉडी 2,5 पे है, मान लो ये येलो वाले स्पॉट पे है, थोड़ी देर के बाद ये बॉडी चलेगी 3,8 पे. आई वुड से 3,8 वुड बी समवेयर 3,8. सो दिस हैज, ये बॉडी इनिशियली यहां थी, अब ये यहां पे है. आई वांट यू टू पे अटेंशन, मैं बहुत तगड़ी बात बताने जा रहा हूं पूरे बैच को. इसके कितने कोऑर्डिनेट्स चेंज हो गए मेरे बच्चे? 2. एम आई राइट? पहले पहले बॉडी कहां थी बेटा? 2,5 पे. अब बॉडी कहां है मेरे बच्चे? 3,8 पे. तो बॉडी की पोजीशन को ढूंढने के लिए मुझे मिनिमम कितने कोऑर्डिनेट्स चाहिए? एक की दो? 2. ऐसे मोशन को बोलते हैं मेरे बच्चे मोशन इन 2 डायमेंशन. ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कूल में भी बताते हैं, जेनेसिस भी बताया आपको, मोशन इन 1D, मोशन इन 2D, बट इसका एग्जैक्ट मतलब नहीं पता होता बच्चे को. 1D एक ऐसा मोशन है, 1D मतलब D स्टैंड्स फॉर डायमेंशन, डायमेंशन here स्टैंड्स फॉर कोऑर्डिनेट. अगर आप किसी बॉडी की, आई रिपीट, अगर आप किसी बॉडी की लोकेशन को मिनिमम एक कोऑर्डिनेट से ट्रैक कर पा रहे हो, मिनिमम एक से, उसको बोलते हैं मोशन इन 1 डायमेंशन. और अगर किसी बॉडी की पोजीशन को ट्रैक करने के लिए आपको मिनिमम 2 कोऑर्डिनेट चाहिए, उसको बोलते हैं मोशन इन 2 डायमेंशन बेटा. 1D 1 कोऑर्डिनेट, मिनिमम 1 कोऑर्डिनेट. 2D मिनिमम 2 कोऑर्डिनेट्स. ऐसी 3D भी होता है जो हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. 2D भी इनफैक्ट 11th में आएगा आपको. 10th तक सिर्फ 1D मोशन सिलेबस में है, बट मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया 1D मोशन का मतलब क्या है. बिकॉज बुक्स के पहले पैराग्राफ में मोशन में चैप्टर में बुक्स में स्पेशली आईसीएससी की बुक में लिखा होता है 1 डायमेंशन मोशन. तो बच्चा पूरी चैप्टर खत्म कर लेता है, उसको 1D वर्ड का मतलब क्लियर नहीं होता. 1D मतलब एक ऐसा मोशन जिसमें बॉडी की पोजीशन को जानने के लिए मिनिमम एक कोऑर्डिनेट का सहारा लेना पड़ता है. Am I clear? Your mundis will do well. Awesome. Coming back to this. So अगर मैं पोजीशन, एक्सक्यूज मी सर. यस बेटा, सर हमारी बुक में लिखा हुआ है कि कर्व्ड पाथ पे 2 डायमेंशन मोशन होता है. बिल्कुल ठीक है बेटा. तो इसमें डाउट है आपको? सर फिर इसके अंदर पोजीशन मतलब जब ऑब्जेक्ट मूव करता है तो फिर उसकी 2 पोजीशंस कैसे पता चलती है? ये मैं 2 समझाता हूँ बेटा. कोऑर्डिनेट्स. ये आपको मेरा येलो वाला पार्ट दिख रहा है, मैंने येलो कार्टेशियन प्लेन बनाया, दिख रहा है आपको? यस सर. अब देखो मैजिक. मैंने ग्रीन से एक बॉडी ऐसे चल रही है, सर्कल में चलिए मान लो, ठीक है, सर्कल सर्कल इज अ कर्व पाथ. आपका यस नाम क्या सर. बच्चा जिसने डाउट पूछा है? काइना. कहना बेटा, मान लो बॉडी पहले यहाँ पे है, इस पॉइंट पे है ना, और इसके ये एक पॉइंट है जिसपे बॉडी के कोऑर्डिनेट्स मान लो 2,1 है. 2,1 कैसे आया होगा? थोड़ा सा मैथ्स लगाते हैं 8th क्लास का. एक्स कोऑर्डिनेट 2 मान लिया, वाई कोऑर्डिनेट 1 मान लिया, तो इस पॉइंट पे इनिशियली बॉडी 2,1 पे कर्व पे चल रही है.
यार मेरा ओके सर। मेरा सर्कल किसने रब कर दिया है? क्या करते हो यार? तो सर्कल रब कर दिया किसी ने। ओके। ना थोड़ी देर के बाद ये बॉडी का है ना, यहाँ से उठ के बेटा सर्कल अभी कर्व पे ही चल रही है, ये बेटा यहाँ चलेगी सेकंड पे। ये आई लिख दिया, ये मैंने एफ लिख दिया, एफ स्टैंड फॉर द फाइनल पोजीशन। Now, Kaina, if you see, the coordinates are maybe this is -2, just taking any value. This is -2 and this is 1. So this is -2 and this is 1. Make sense, Kaina? यस सर। So how many coordinates change, Kaina? So the body is moving on a curve. यस सर। How many coordinates change? 2. So this is motion in 2 dimensions. ओके सर, थैंक यू सर। Okay, mere bache. So is the concept clear, guys? Guys, is यस the सर। concept clear? So coming back, kind अपने आप को वापस म्यूट कर लो बेटा. So this is what is 1D 2D का basic concept. One coordinate 1D, two coordinate 2D. रेस्ट कभी और मैं अक्षर को बोल दूंगा, इस पे थोड़ी सी डिस्कशन कर लेंगे डिटेल में. Now let's move to the position time graph. I'm moving to the new screen. Okay. Now when I talk about position time का, I think guys, which screen is better, black or white? Black base, white base? I think black base is more attractive. Black is more attractive, na? Adhika, in guys, black is black or white? Awesome. Sir, black. Black ना, हाँ हम जेनेसिस भी ब्लैक ही है. डिस्टेंस टाइम लॉजिक समझेंगे, बहुत ध्यान सुनेंगे, प्लीज प्लीज फोकस. नाउ लॉजिक कैसे समझना है? मैंने तुम्हें उस दिन स्लोप के बहुत सारे केसेस कराए. अब जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है, इसकी स्लोप बेटा स्पीड देती है. क्या देती है? स्पीड. और इसकी स्लोप बेटा वेलोसिटी देती है. मैं तुम्हें एक मंत्र सिखाता हूं. वी कॉल दिस एज जेनेसिस मंत्र. ये मैंने जब मतलब जब जेनेसिस शुरू शुरू किया था स्टार्टिंग में, तब से बताता हूँ मैं, जब मैं पढ़ाता था बहुत. जेनेसिस मंत्र 1. जिंदगी में हम बहुत सारे ग्राफ्स पढ़ते हैं, बहुत सारे. ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा. हमने संडे को स्लोप के लेक्चर पे 1.5 घंटा लगाया था. स्लोप के कॉन्सेप्ट क्यों लगाया था? इट वॉज बेसिकली फिजिक्स मैथमेटिक्स लेक्चर. क्योंकि बेटा जनरली क्या होता है, ग्राफ्स की स्लोप्स बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में. ग्राफ्स की जो स्लोप होती है वो हमें कोई फिजिकल क्वांटिटी देती है. आई रिपीट, the slope of the graph gives us a lot of important physical quantity. जैसे मैंने बोला, धैर्य ध्यान दे बेटा, डिस्टेंस टाइम की स्लोप स्पीड देती है, डिस्प्लेसमेंट टाइम की स्लोप वेलोसिटी देती है. अब कल को मैं तुम्हें वेलोसिटी टाइम पढ़ाऊंगा थोड़ी देर के बाद, उसकी स्लोप एक्सेलरेशन देती है. हम न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन का चैप्टर पढ़ेंगे, इसके बाद लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे फोर्स टाइम की स्लोप मोमेंटम चेंज देती है. मोमेंटम टाइम की स्लोप फोर्स देती है, सॉरी. अब क्या होता है बेटा कि हम जिंदगी में इतने ग्राफ्स पढ़ेंगे, इतने ग्राफ्स पढ़ेंगे, आप और भी ग्राफ्स पढ़ोगे, तो ये ना भूल जाता है कि किसकी स्लोप क्या देती है. उसके लिए एक सिंपल सा मंत्र मैंने बनाया है बच्चों के लिए. क्या है मंत्र? जब हम ये भूल जाएं तो आपने क्या करना है, मंत्र कैसे कहता है, वाई एक्सिस पे जो भी क्वांटिटी है, वाई एक्सिस की क्वांटिटी को, के यूनिट्स को आप लिखो न्यूमरेटर में. उसको डिवाइड करो बेटा एक्स एक्सिस की क्वांटिटी के यूनिट्स से. जो अब नेट यूनिट बनेगा वो जिस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है वो आंसर है. एग्जांपल समझाता हूं, आराम से समझेंगे, धीरे पढ़ा रहा हूं, बहुत धीरे पढ़ा रहा हूं, ऑनलाइन में वैसे ही धीरे पढ़ाता हूं मैं. ये है मेरे पास, मान लेते हैं बेटा डिस्टेंस टाइम ग्राफ. अगर मैं भूल जाऊंगा, वैसे तुम नहीं भूलोगे, पर मान लो पेपर में भूल गए इसकी स्लोप क्या देती है, एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा. डिस्टेंस तुमने लिखा, वाई एक्सिस पे प्लॉट है मीटर, टाइम है एक्स एक्सिस पे प्लॉट सेकेंड. मीटर पर सेकेंड का यूनिट किसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड? या तो स्पीड का बेटा या वेलोसिटी का. यस और नो मेरे बच्चे? यस और नो गाइस? अब Yes, sir. अब क्योंकि मेरे बच्चे यहां पे डिस्टेंस था,
जो स्केलर क्वांटिटी है तो आंसर भी स्केलर बनना चाहिए, इसीलिए डिस्टेंस टाइम की स्लोप मीटर पर सेकेंड यूनिट बन रहा है तो वो स्पीड देती है। अगर मेरी जान यहां पे होता डिस्प्लेसमेंट टाइम, तो बेटा उसकी स्लोप मुझे क्या देती, वेलोसिटी देती। क्या करना है, मंत्र नंबर 1, स्लोप के लिए यूनिट्स को डिवाइड करना है। खुशबू क्या करना है, यूनिट्स को डिवाइड बेटा। पीयूष क्लियर हुआ? एक और एग्जांपल लेते हैं, इधर देखो सारे। अगर इसके बाद आपको पढ़ाऊंगा मैं, मतलब हम पढ़ेंगे, स्कूल में पढ़ाते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब वेलोसिटी टाइम में इसका यूनिट होगा मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी का यूनिट हो गया। टाइम का यूनिट होता है मेरे बच्चे सेकंड, ये डिवाइड हो गया, स्क्वायर हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर बेटा यूनिट होता है एक्सेलरेशन का, सब जानते हैं। तो वेलोसिटी टाइम की स्लोप हमें क्या देगी मेरी जान, एक्सेलरेशन। ये मंत्र कभी फेल नहीं होगा मेरे बच्चे, 12th तक यही मंत्र से आप कभी भी कंफ्यूजन हो जाए किसी ग्राफ की स्लोप क्या देती है, तो आपको स्लोप के लिए क्या करना है, एंजल वामिका विधि ध्यान दे रहे हैं ना बच्चे, कि आपने वाई एक्सिस पे जो भी क्वांटिटी है उसके यूनिट्स को न्यूमरेटर में लिखना है, एक्स एक्सिस पे जो भी क्वांटिटी है उसके यूनिट्स को डिनोमिनेटर में लिखना है, दोनों यूनिट्स को डिवाइड करना है, जो नेट यूनिट बनेगा, जो वो फिजिकल क्वांटिटी है, वो मेरा आंसर है। बोलो यस मन में। कॉन्सेप्ट क्लियर है? सर फिर से एक्सप्लेन कर दो। हाँ, कौन है बेटा, किसको डाउट है? श्योर है। शौर्य बेटा, वाई जब आपने आपको ये चेक करना है कि किसकी किस किस ग्राफ की स्लोप क्या देती है, तो आपने यूनिट्स को डिवाइड करना है। डिवाइड करने के लिए ऊपर रखना है आपने बेटा वाई एक्सिस पे जो क्वांटिटी प्लॉट है। जैसे अगर आपने पहला एग्जांपल देखा, मैंने डिस्टेंस डिस्टेंस टाइम ग्राफ लिया, उसमें वाई एक्सिस पे बेटा प्लॉट होता है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का यूनिट मीटर हो गया, टाइम का यूनिट सेकंड हो गया, तो मीटर पर सेकंड होता है स्पीड का यूनिट, तो डिस्टेंस टाइम की स्लोप हमें स्पीड देगी, क्योंकि स्पीड स्केलर है, डिस्टेंस भी स्केलर है। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम होता उसकी स्लोप मुझे वेलोसिटी देगी, बिकॉज वेलोसिटी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ये क्लियर है सबको गाइस? गाइस आर यू विद मी ऑन दिस? यस। Yes, sir. Awesome, guys. So Yes, let's sir. so awesome. So let's talk about beta. The first case of many cases. I'm talking about distance time graph. Now, for as per your syllabus, I'm talking now. And let's talk about the first case. And मैं अपने तरीके से ग्राफ कराऊंगा, हो सकता है आपको सर ने किसी और तरीके से कराया हो, जो बिल्कुल ठीक होगा, सर का तरीका भी बिल्कुल ठीक है बेटा। इट्स जस्ट दैट एक रिविजन भी हो जाएगी मेरे बच्चे। केस नंबर 1, इसको मैं सारे ग्राफ्स को स्लोप के कॉन्सेप्ट से कराऊंगा। बॉडी एट रेस्ट, बहुत सिंपल है। ध्यान से देखते हैं कैसे बनेगा अगर आप स्लोप वाले कॉन्सेप्ट से अप्रोच करेंगे मेरे बच्चे। बॉडी रेस्ट पे है, मतलब इमेजिन करते हैं, बहुत ध्यान सुनना। अगर बॉडी रेस्ट पे है बेटा, तो डेफिनेटली एक चीज पक्का है कि स्पीड जीरो होगी। यस और नो मेरे बच्चे? अगर एक बॉडी, अभी हम अब 9:30 से अब 9:35 से आप लोग क्लास के लिए बैठे हो, और हम सबकी स्पीड कितनी है, 9:35 से लेके अभी तक हम सबकी स्पीड कितनी है मेरे बच्चे, जीरो है। एम आई राइट? क्योंकि हम सब रेस्ट पे हैं। अगर मुझे इसका ग्राफ प्लॉट करना हो, मेरी बात बहुत ध्यान से देखना बेटा, अगर मुझे इसका ग्राफ प्लॉट करना है तो बहुत ध्यान से देखना। अब मैंने अभी तुम्हें सिखाया डिस्टेंस टाइम की स्लोप हमें स्पीड देती है, यानी कि मुझे एक ऐसा केस बनाना है जिसमें स्लोप जीरो। अब ये उन्हीं को बेटर समझ आएगा जिन्होंने संडे की क्लास लगाई थी। यानी कि मुझे एक ऐसा ग्राफ बनाना है बेटा जिसमें स्लोप को जीरो करना है, और सबको याद है स्लोप जीरो होती है जब कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, बिकॉज जब लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करती। अगर वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो वो एंगल नहीं बनाएगी, एंगल नहीं बनाएंगी तो उसकी ढलान नहीं होगी, ढलान नहीं होगी तो उसकी स्लोप जीरो है। दैट्स द ग्राफ, काम खत्म। और फिर से देखें मैंने क्या बोला इतनी जल्दी जल्दी में। मैंने तुम्हें बोला एग्जाम में क्वेश्चन आया, ड्रॉ द स्पीड डिस्टेंस टाइम। आई वांट यू टू पे अटेंशन गाइस, बहुत डीप है, मजाक मजाक में बहुत डीप पढ़ेंगे हम। आई वॉन्ट यू टू ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ बॉडी एट रेस्ट। एग्जामिनर ने बोला बॉडी एट रेस्ट का डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है। अब जेनेसिस का बच्चा इसको कैसे अप्रोच करेगा, ध्यान सुनना।
रटा नहीं मारना। वो कहेगा यार ओके, मुझे एग्जाम में दिया डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है, स्लोप से लिंक करते हैं। अब हमें पता है कि डिस्टेंस टाइम की स्लोप हमें स्पीड देती है। तो अब बॉडी जब रेस्ट पे हो गई तो ऑब्वियसली उसकी स्पीड जीरो होगी। स्पीड जीरो का मतलब है क्योंकि स्लोप स्पीड देती है, स्पीड जीरो है, इसका मतलब स्लोप जीरो है। अब मुझे एक ऐसा ग्राफ ड्रॉ करना है एग्जामिनर के पर्सपेक्टिव से जिसमें हमारी स्लोप ना हो। जो स्लोप ना हो तो यही एक ऐसी पॉसिबिलिटी है, बिकॉज ये लाइन, स्लोप का मतलब होता है ढलान। क्योंकि ये अब ये संडे वालों को बिल्कुल समझ आ गया होगा, क्योंकि ये लाइन एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रही, इसका मतलब इसकी स्लोप जीरो है। therefore slope is speed for distance time, therefore speed is zero, and this is the case one when the body is at rest। किस किस को समझ आ गया? गाइस किस किस को समझ आ गया मेरे बच्चे? चिराग इज वन, ऑसम, मुंडिया हिल रही हैं, गुड गुड। किस किस को समझ आ गया पक्का? यू कैन रिप्लाई मी ऑल्सो इन द चैट। यू कैन रिप्लाई मी ऑल्सो इन द चैट इफ यू गेट द कॉन्सेप्ट, बिकॉज ऐसे मुझे आप लोगों का ना लेवल पता लग जाएगा बेटा, कि मुझे, क्योंकि आपके लेवल पे ही मैं लेक्चर्स बनाऊंगा ना अपने। क्योंकि क्योंकि तेज पढ़ाना है स्लो पढ़ाना है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग पे डेवलप करता है मेरे बच्चे। ओके ऑसम गाइस, ओके ऑसम ऑसम परफेक्ट, आई लाइक इट, आई लाइक इट। अगर किसी को डाउट है अपने एक काम करो, अगर किसी को डाउट है डाउट्स नोट कर लेना, उसको फिर किसी और दिन हैंडल कर लेंगे। मे बी आई आस्क अक्षय सर टू टेक योर डाउट्स आल्सो। नाउ इज इट क्लियर बेटा? तो देखो तुमने क्या, मैंने कैसे अप्रोच कराया, मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप से अप्रोच कराया, सेम सेम तरीके से, थर्ड मतलब सॉरी डिफरेंट तरीके से। केस नंबर 2 आता है। एक्सक्यूज मी सर। यस बच्चे। सर उसमें डिस्प्लेसमेंट में भी सेम ही होगा? इस केस में डिस्प्लेसमेंट टाइम भी सेम होगा बेटा जी, क्योंकि बॉडी रेस्ट पे है तो वेलोसिटी भी जीरो होगी। तो ये मैं डिस्टेंस टाइम हो या डिस्प्लेसमेंट टाइम हो, ये ग्राफ मेरे बच्चे, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन बेटा, बिल्कुल सेम होगा मेरे बच्चे। बेटा अभी उतारने की ओके जरूरत सर। नहीं है आपके पास, पता क्या होगा, मैं आपको ये नोट सारे भेज दूंगा, लेक्चर की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, उसको लेक्चर को 1.5x पे देख के या सिर्फ नोट्स भी देखोगे, अपने नोट्स अपने आराम से बन जाएंगे। किसी को हेल्प चाहिए होगी तो मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल हूँ। ओके केस नंबर 2, क्योंकि अभी अगर आप साथ साथ नोट्स बनाओगे ना तो आप सुनोगे नहीं ध्यान से। केस 2 इज दैट body is with moving with a uniform motion। ठीक है, केस 2 कहता है एग्जाम में क्वेश्चन आया, ड्रॉ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ द बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर? मेरी बात ध्यान सुनना। अब मेरा जो जेनेसिस का बच्चा है वो कैसे अप्रोच करेगा, मेरी बात ध्यान सुनना बेटा, पहले मैं यूनिफॉर्म मोशन क्लियर कर दूं सबको। काफियों को पता होगा यूनिफॉर्म मोशन का एक मतलब है, कैसा मोशन, ध्यान सुनना, जिसमें बॉडी की, तुमने जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मतलब तुम सारे मेरे बच्चे हो, जिसमें तुमने सिर्फ एक चीज पे फोकस करना है। यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन में, स्कूल में डेफिनेशन बताते हैं, इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। आई थिंक यही है डेफिनेशन। अगर तुमने एक लाइन में पूरी जिंदगी के लिए इसको समझना है, सिर्फ एक चीज याद रखना, स्पीड शुड बी कांस्टेंट। ये मंत्र ये अपने जहन में डाल लो बेटा। एग्जाम्पल देखो, मैं समझाता हूँ, बच्चे क्यों कंफ्यूज होते हैं, इधर देखो, मैं ग्रीन से लिख रहा हूँ नीचे। एक बॉडी 10 मीटर पर सेकेंड से ऐसे ऐसे चल रही है, ए से बी गई 10 मीटर पर सेकेंड से, अजीब अजीब से पाथ से गई। मान लो कोई शराबी है, ऐसे जा रहा है। इज दिस यूनिफॉर्म मोशन और नॉट यूनिफॉर्म मोशन? आंसर इज इट इज अ यूनिफॉर्म मोशन। अगर किसी को लगता था ये नॉन यूनिफॉर्म है, आज मैंने क्लियर कर दिया, फिर से सुन लो। जब आपने ये चेक करना है कि कोई मोशन यूनिफॉर्म है या नहीं है, तो आपने सिर्फ एक चीज चेक करनी है, क्या क्या स्पीड कांस्टेंट है? अगर स्पीड कांस्टेंट है बेटा, तो आपको बिना सोचे समझे आपने टिक करना है, इट्स अ यूनिफॉर्म मोशन। डायरेक्शन का, आई रिपीट, डायरेक्शन का, यूनिफॉर्मिटी ऑफ द मोशन पे कोई डिपेंडेंस या लिंक नहीं है। डायरेक्शन भाड़ में जाए। Am I clear? Am I clear? So I say that if the dash is constant, speed, Kashish, if the speed is constant, then irrespective of the direction, the motion will always be a uniform motion. Am I clear? Makshi, am I clear, beta? Dhairya, Gurman, am I clear? Harman, am I clear, beta? Adrika, Ashad, am I clear? Daman, am I clear, beta? Kaina, am I clear, beta? Yes, sir. Awesome, guys. I love you. यस सर। So अब वो कहता है एक ऐसा ग्राफ ड्रॉ करना है, आई वॉन्ट यू टू पे अटेंशन,
जिसमें मेरे बच्चे स्पीड कांस्टेंट हो। अब मेरे बच्चे का फिर से वही थॉट प्रोसेस है, वो कहता है अच्छा डिस्टेंस टाइम है, स्पीड की बात कर रहा है, हाँ डिस्टेंस टाइम में हमें यूनिफॉर्म मोशन है तो स्पीड कांस्टेंट है, यानी कि स्लोप कांस्टेंट होनी चाहिए, क्योंकि स्पीड स्लोप देती है। अब जो भी बच्चों ने संडे की क्लास लगाई थी, हमने बड़ा प्यारे तरीके से पढ़ा था, स्लोप कांस्टेंट का ग्राफ होता है या तो ये या ये, एक ही बात है। सो मेरा वो बच्चा सीधा बनाएगा डिस्टेंस, आप स्कूल में ये बना सकते हो वैसे, स्कूल में ये बना देना, बताता हूँ फर्क, बताता हूँ अभी 2 मिनट बाद बताता हूँ। तो दिस इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी विच इज इन यूनिफॉर्म मोशन। अब जो ने संडे क्लास मिस की थी उनके लिए 1 मिनट सुन लो, इस ग्राफ की स्लोप कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि इसका ये एंगल जो है एक्स एक्सिस के साथ वो हमेशा कांस्टेंट है, बाकी जब नोट्स कॉपी करोगे समझ आ जाएगा। ये एंगल पे स्लोप डिपेंड करती है, क्योंकि ये एंगल कांस्टेंट है, एंगल कांस्टेंट है तो स्लोप कांस्टेंट है। डिस्टेंस टाइम की स्लोप क्या देती है, स्पीड, इसलिए स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है तो मतलब यूनिफॉर्म मोशन हुआ, क्यों यूनिफॉर्म मोशन है, बिकॉज यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन क्या है, द स्पीड इज कांस्टेंट। क्लियर है, इसलिए हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये बनेगा फॉर अ बॉडी इन डैश मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। बोलो यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पक्का? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके मेरी बात ध्यान सुनना, क्योंकि यहाँ पे अब हमारा फर्स्ट सेशन खत्म होने वाला है, वी आर अबाउट टू विल स्टार्ट द नेक्स्ट सेशन इन नेक्स्ट 1 मिनट। मेरा क्वेश्चन ये है आप सबके लिए, बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, क्या ये वाला ग्राफ नीचे बना रहा हूँ, छोटू सा नोनू से बना रहा हूँ, क्या ये वाला डिस्टेंस टाइम ग्राफ पॉसिबल है? अ लाइन विच इज Yes. अगेन अगेन Yes, sir. Sir. Yes, इसको sir. इसको हम कंटिन्यू Yes, करते sir. हैं, इसको हम कंटिन्यू करते हैं इन द नेक्स्ट नेक्स्ट मीटिंग, जब एग्जैक्टली 1 मिनट फ्रॉम नाउ आई स्विच ऑन माय नेक्स्ट लिंक। यू नो यू हैव द लिंक, बट यू हैव द डिटेल्स, लॉग इन आफ्टर 1 मिनट, पानी पुनी पी लो, किसी को ब्रेक लेनी है 1 मिनट की, गेड़ी मार लो अपने घर में, ठीक है, एंड लेट्स सी यू नेक्स्ट 5 मिनट्स टू 1 मिनट सॉरी। So is this possible? Most, how many of you say it is not possible? Anyone who says not possible, just reply in the chat if you say it's not possible. Awesome, which means all of you believe this is possible. Yes or no? It is possible. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Possible. Okay, so the answer is no, it is not possible. I want you to pay attention. This is a very interesting question. Now, why it is not possible? अब आप बोलोगे सर स्लोप तो अभी भी कांस्टेंट है because the angle is constant. But beta, if you remember the Sunday's lecture, this the line which makes an obtuse angle indicates that this slope is negative. बताया था संडे को कि अगर लाइन का एक्स एक्सिस के साथ एंगल ऑब्ट्यूज बन रहा है, और एंगल हमेशा मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना है, ऑल ऑफ यू who attended the class will understand it. अब क्योंकि ये लाइन का एक्स एक्सिस के साथ एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऑब्ट्यूज है, एंटी क्लॉकवाइज, देयरफॉर इसकी स्लोप नेगेटिव है। अब स्लोप मतलब स्पीड नेगेटिव है। अब स्पीड नेगेटिव का मतलब है स्पीड तो स्केलर क्वांटिटी है, नेगेटिव नहीं हो सकती, इसीलिए दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। प्लीज अंडरस्टैंड दिस बेटा, दिस इज अ वेरी डीप कॉन्सेप्ट। अगर मेरे बच्चे ये होता डिस्प्लेसमेंट टाइम, सेम ग्राफ होता डिस्प्लेसमेंट टाइम, अब मैं यहां पे 5 मिनट लगाऊंगा और वो जिंदगी के बहुत क्रूशियल 5 मिनट है मेरे बच्चे, अगर ये मेरे बच्चे होता डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ तो ये पॉसिबल था, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट टाइम की स्लोप क्या देगी, वेलोसिटी, और वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है। वेलोसिटी नेगेटिव का मतलब समझ लो, अगर नहीं पता, अगर तो पता है तो बहुत बढ़िया है, अगर आज तक नहीं पता तो समझ लो। स्पीड नेगेटिव क्यों नहीं होती, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसका आज मतलब समझते हैं, वैसे सर ने बताया होगा बट मैं अपने तरीके से बताता हूं। नेगेटिव मतलब क्या है, नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब है बॉडी ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। लुक एट माय पेन, ऑपोजिट टू द पॉजिटिव डायरेक्शंस। पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब एज पर द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन का मतलब मैं तुम उस दिन भी बताया था, ये है मेरा कार्टेशियन प्लेन मेरे बच्चे। आई वांट यू टू लुक एट दिस फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ वेरी केयरफुली। This is plus x-axis. This is minus x-axis. This is plus y-axis. This is minus y-axis. We all know this. Am I right?
अगर एक बच्चा इधर चल रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, तो आई विल से द वेलोसिटी इज +2 मीटर पर सेकेंड। अगर कोई बच्चा इधर चल रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, आई विल से द वेलोसिटी इज -2 मीटर पर सेकेंड। +2 और -2 पे जिंदगी भर के लिए चीज याद रखो। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो ब्लू बॉडी है वो ग्रीन से ज्यादा तेज चल रही है। दोनों सेम स्पीड से चल रही हैं, सिर्फ फर्क है उनकी डायरेक्शन में, यानी कि दोनों ऑपोजिट चल रही हैं। और यही होता है वेक्टर का मतलब। जब तुम्हें स्कूल में या जेनेसिस पे ये बताया, तो क्वांटिटीज दैट डिपेंड अपॉन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, वो वेक्टर है। उसका मतलब क्या है कि वेक्टर्स नेगेटिव हो सकते हैं, और नेगेटिव वेक्टर्स का मतलब होता है ऑपोजिट डायरेक्शन। स्पीड नेगेटिव क्यों नहीं हो सकती बेटा? बिकॉज स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर्स नेगेटिव नहीं होते। स्केलर में सिर्फ नंबर होता है, प्लस प्लस। प्लीज सुनो ध्यान से, क्योंकि ये ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम है। अब ये एंगल ऑब्ट्यूज है, स्लोप नेगेटिव होगी, पर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज वेलोसिटी, देयरफॉर वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है। तो दिस इज पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। दिस इज नॉट पॉसिबल because I repeat, speed cannot be negative, it's a scalar quantity. Velocity can be negative, it's a vector quantity. और मैंने तुम्हें आज जिंदगी भर के लिए फंडा समझा दिया। एक बॉडी, अगर मैं बोलूं, अगर मैं आप सबसे पूछूं, पीयूष इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड एंड काइना इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ with the velocity of, sorry, Piyush is moving with the velocity of 2 meter per second, Kaina is moving with the velocity of -2 meter per second. Vidhi, your question, who is traveling faster? Sir Piyush. Gurman? Sir, they are both moving with Same speed. Vidhi, are you not paying attention? Both are Sir, I traveling am at the paying. same both are traveling at the same speed. The only difference is that their directions are opposite. Maybe Piyush is going towards positive x-axis, whereas the Kaina is moving towards negative x-axis. They are moving in the opposite direction. So since we have to differentiate between their directions, so velocity का help लिया हमने, minus लगा दिया। अगर मैं स्पीड के कॉन्टेक्स्ट में बोलूंगा, तो मैं ये बोलूंगा बोथ कायना एंड पीयूष आर ट्रैवलिंग एट 2 मीटर पर सेकेंड। Harman, is it clear to you? Makshi, is it clear to you, beta? Ishika, is it clear to you? Shaurya, is it clear to you? एक्सक्यूज मी सर। Yes, मेरे बच्चे। सर अगर स्केलर क्वांटिटी है उसमें सिर्फ पॉजिटिव में होगा और वेक्टर में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। Yes, मेरे बच्चे। वेक्टर का मतलब ही क्या है बेटा? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जो डायरेक्शंस ऑपोजिट होती हैं उनको हम नेगेटिव के साथ डिनोट करते हैं। एग्जांपल देता हूं, देखो समझाता हूं, रुक जाओ और डिटेल में समझो, आज के बाद जिंदगी भर दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इधर देखो, आज सुबह ये तुम्हारा एग्जाम्पल जिंदगी भर याद रखना। एक ब्लॉक है बेटा, एक ये ब्लॉक है, इस पे इधर से 10 न्यूटन की फोर्स लगी, इधर से 5 न्यूटन की फोर्स लगी, इस पे इधर से 10 पास्कल का प्रेशर लगा, इस पे इधर से 5 पास्कल का प्रेशर लगा। नोट्स कंप्लीट कर लेना बेटा, ये बहुत कहीं नहीं मिलना है जो मैंने पढ़ाया है आज तुम्हें इस फॉर्म में। इधर पूछा व्हाट इज द नेट फोर्स, इधर पूछा व्हाट इज द नेट प्रेशर। व्हाट इज द नेट फोर्स इन द फर्स्ट केस गाइस? 5 न्यूटन। 5 न्यूटन। कौन कौन 5 कह रहा है? ऑसम, 5 न्यूटन। ओके, व्हाट इज द नेट प्रेशर इन द राइट हैंड साइड केस? 5 पास्कल। 5 Pascal. Vidhi, you say 5 Pascal. Kaina, you say 5 Pascal. Gurman, what is the net pressure in the right hand side? Sir, 5 Pascal. Pascal. 5 Pascal. Anybody who says not 5 Pascal, right hand side पे कोई कहता है 5 नहीं होगा? Okay, answer is 15 Pascal. And this is the game. I'll teach you the game today. I want you to pay attention to the rest of this. Is the game of physics. How do you write? How do you find net? Net का मतलब होता है प्लस 10 न्यूटन प्लस -5 न्यूटन।
अभी आप सब मुझे बहुत प्यार करोगे आज के लेक्चर के बाद। सर -5 कैसे सुन ले आया? बहन, बहन सुन तो ले, बढ़ जा खड़ जा। ये नेगेटिव क्यों आया है, और म्यूट रखो अपने आप को। बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। Therefore, this force, since this force, the blue force is in the opposite direction. Therefore, इसके साथ नेगेटिव लग गया। Therefore, this plus minus becomes minus. So 10 plus minus minus 5. Answer becomes 5 Newton. सब इसको सिखाते हैं, सब ये बताते हैं, ये कोई नहीं बता रहा। Whereas pressure is a scalar quantity, which means what? It will always be 10 Pascal plus, and this will also be taken as plus because Pascal being pressure does not depend upon direction, चाहे वो opposite हो, so this will always be added. This is the difference between vector quantities and scalar quantities, मेरी जान। एंड यहाँ पे एक और डाउट होता है, अगर आप स्कूल में मैम से पूछोगे तो मैम आपको शायद हो सकता है, या सर या कोई भी, कि ये नेगेटिव क्यों लिया है, इसको नेगेटिव क्यों नहीं लिया, तो आपको ये बोल देंगे कि 10 बड़ा है। ये भी गलत रीजन है। 5 का डायरेक्शन इज टूवर्ड्स माइनस एक्स एक्सिस। ये चुंझी, ये टिप किस तरफ पॉइंट कर रही है? नेगेटिव एक्स एक्सिस में, इसलिए इट इज -5। ये कहां पॉइंट कर रही है? प्लस एक्स एक्सिस में, इसीलिए दिस इज +10। Gurman, you're not supposed to talk to your parents when you're attending the class. Everything can wait because nothing is more important than this at this stage. क्योंकि तू बहुत अच्छी बच्ची, तेरा लेक्चर खराब हो जाएगा। Are you guys with me? Whenever anybody tells you the quantity of those quantities will depend upon magnitude only, इसका मतलब ये होता है only magnitude, मतलब चाहे ये उधर से लग रहा है चाहे कहीं से भी लगेगा, ये हमेशा ऐड ही होगा। और क्योंकि ये वेक्टर है, ये ऑपोजिट लग रही है, इसीलिए मुझे इसके साथ क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव। और नेगेटिव इसी के साथ क्यों लिया? बिकॉज ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में है। बेटा फिजिक्स का मैजिक समझ आ रहा है? नाउ यू गेटिंग व्हाई आई एम टेकिंग दीज वर्कशॉप्स। आर यू गाइस विद मी? Yes, sir. So can speed be negative? No, sir. That's why No, sir. that graph is true for displacement time but not speed time. मेरे साथ हो? Yes, sir. Yes, Sir. sir. I love you guys. This is very important बेटा। अगर इसमें इस पेज पे कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो। गिविंग यू 30 seconds. Okay, awesome. I'm moving to the next question. Next case, very important. कहता है एक बंदा, मान लेते हैं, लेट्स टेक एनी वन ऑफ योर एग्जांपल। लेट्स टेक फॉर एग्जांपल धैर्य। धैर्य कहता है पहले मार्केट गया। प्लीज पे अटेंशन, इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। धैर्य पहले मार्केट गया 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से घर से ब्रेड लेने। उसने ब्रेड ली, रुका वो 5 सेकंड के लिए, वो 2 मीटर पर सेकंड से गया, क्या लेने गया? ब्रेड लेने। 10 सेकंड वो रुका, उसने ब्रेड ली। ठीक है, ब्रेड लेने के बाद वो अपने घर आ गया सेम स्पीड से, 5 सेकंड में घर पहुंच गया। एग्जाम में क्वेश्चन आया, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग। प्लॉट, स्कूल के एग्जाम में आने की चांसेस कम है, बट आ भी सकता है। आईसीएससी में तो डेफिनेटली आ सकता है। प्लॉट दो, बट अगर टीचर दिमाग लगा के पेपर बनाएंगे तभी आएगा। प्लॉट द डिस्प्लेसमेंट टाइम का। 1 मिनट दे रहा हूं, अपनी नोटबुक्स में बनाओ। प्लॉट द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और द एंटायर जर्नी ऑफ धैर्य। लेट्स सी हु कैन ड्रॉ दिस।
and be honest with yourself. Last 30 seconds. Anybody who has drawn it? हुआ किसी का? You can send me in the group, in the chat. वामिका हुआ? Sir, I'm doing it right now. Okay, keep trying. चिराग हो गया? ख्वाहिश हो गया? राधिका हो गया? Okay, keep trying it guys. It's not a competition. नहीं होगा तो मैं तो करा ही दूंगा. Last 10 seconds guys. Because इससे टाइम नहीं दे सकते इस पे. टाइम आप. मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, बताना किसके साथ ठीक है. एंड बी ऑनेस्ट विद मी. आई डोंट आई एम ओके विद नॉट यू डूइंग इट रॉन्ग चलेगा. यू डूइंग इट बाय चीटिंग नहीं चलेगा. This is the graph. Anybody who did it correct? Anybody who did it correct? No answer in the chat. It's not an issue. अच्छा क्वेश्चन था. 11th के बच्चे भी गलत कर देते हैं. तुम्हारी गलती नहीं है. इट्स अ गुड क्वेश्चन. लेट्स सी हाउ. लॉजिक समझो. यहां से यहां तक नाम दे देते हैं इसको PQRS. P से Q स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव. एंगल Positive. गुड. एंगल एक्यूट बनना. स्लोप इज पॉजिटिव. मेरी बात ध्यान सुनो. Q से R तक स्लोप क्या है? 0. 0 है ना बेटा. लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी. और R से स्लोप क्या है? नेगेटिव, क्योंकि एंगल ऑब्ट्यूज बन रहा है. अब क्वेश्चन को समझो. धैर्य अपने घर से निकला, मान लो इधर गया. कैन यू सी द एरो ऑफ माय आई पेंसिल? इधर गया. तो मान लो इस डायरेक्शन को पहले पॉजिटिव मान लिया मैंने. एक्स एक्सिस पॉजिटिव है. तो कितने मीटर से गया? 2 मीटर पर सेकंड से गया. चलो उसमें 2 मैंने दिखाने की जरूरत नहीं है. मैंने सिर्फ दिखाया कि स्लोप पॉजिटिव. कांस्टेंट स्पीड से गया ना बेटा. तो 5 सेकंड तक, फर्स्ट 5 सेकंड तक ये मैं शेड किया, इसका एंगल कांस्टेंट रह रहा है, स्लोप कांस्टेंट का पार्ट. उसके बाद वो 10 सेकंड दुकान पे रुका. अगर रुकेगा तो स्पीड वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0. तो स्लोप कितनी हो जाएगी? 0. तो उसके बाद अगले 10 सेकंड के लिए ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी. अब वो ये इधर गया था, रुका, दुकान से वापस गया. घर ऑपोजिट होगा ना. अब वो वापस जा रहा है तो वेलोसिटी बनाना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम है, इसकी स्लोप वेलोसिटी देती है. तो वेलोसिटी नेगेटिव लेनी पड़ेगी. और वेलोसिटी क्योंकि नेगेटिव हो सकती है, इसीलिए मैंने ऑपोजिट डायरेक्शन में ये ग्राफ यहां से नीचे आ गया. ये इंडिकेट क्या कर रहा है? फिर से सुन लो. ये अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. एडवांस फिजिक्स का क्वेश्चन है. ये इंडिकेट ये कर रहा है कि बॉडी घर आ रही है, क्योंकि इतने पार्ट की स्लोप
नेगेटिव है मतलब वेलोसिटी नेगेटिव है कांस्टेंट, मतलब 2 मीटर पर सेकंड से वापस घर की तरफ आ रहा है। अगर मैजिक दिखाऊं तुम्हें, अगर यही वो पूछता इसी का डिस्टेंस टाइम बनाना है तो ये बनता, इधर देखो, राइट पे देखो छोटा सा ग्राफ। क्योंकि उस केस में वापस आते हुए भी मुझे पॉजिटिव स्लोप रखनी पड़नी थी, क्योंकि स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती। अगर जिस बच्चे को बेटा फिजिक्स में, और ये टफ है आज का लेक्चर, टफ है, तुम्हें अगर लग रहा है ना तुम्हें कम समझ आ रहा है, तुम्हारी गलती नहीं है, जेन्युइनली बहुत डीप पढ़ा है मैंने। जिस बच्चे को डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ में फर्क समझ आया था ना बेटा, वो तबाही मचा देता है फिजिक्स में। समझ आया? समझ आया? Yes. एक मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, बिकॉज लास्ट 5 minutes ऑफ द लेक्चर इज देयर, please make sure you revise it. I'll send you the video, but don't miss watching it again at a high speed, and notes revise जरूर करना बेटा। और कोशिश करना कल 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 दोपहर को जेनेसिस आने से पहले कर लेना, क्योंकि अभी तो सो जाना, बट कल उठ के ना तुम्हारे ग्रुप्स पे आगे होंगे, प्लीज कर लेना बेटा। बिकॉज अगर आज कल रिवाइज कर लिए ना पक्के हो जाएंगे लाइफ के लिए, नहीं तो सारा एफर्ट वेस्ट है। लास्ट ग्राफ ऑफ टुडेज लेक्चर इज नॉन यूनिफॉर्म। दिस इज द लास्ट फॉर टुडे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में आई विल टीच यू वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स। नेक्स्ट क्लास ऑनलाइन की ऑफलाइन गाइस? हाउ मेनी ऑफ यू से ऑनलाइन? मी लिखो ऑनलाइन, द किड्स हु से मी, बिकॉज नेक्स्ट क्लास विल बी इन 15 नाउ। अगर ऑफलाइन होगी तो अब 15 वाले बैच की सेंटर की बारी है, तो आपको 15 आना पड़ेगा 20 वाले बच्चों को। सो इफ यू से मी then it is on offline. If you say nothing, that it means most of you want it online. One, two, three, four. Only four, five, five, six, seven. No, six. Don't write online. Will not write anything. Only offline. 7, 8. Okay. So online is winning. We'll stick to online. We'll see what can be done. Okay. Coming back to the last case. Last 5 minutes of lecture. Then you can sleep and whatever you want to do. Non-uniform motion मतलब एक ऐसा motion जिसमें speed will change. Am I right? Yes or no? अभी बताया, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म मोशन है, स्पीड चेंज हो रही है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म है तो स्पीड चेंज हो रही है, इसका मतलब स्लोप विल चेंज, क्योंकि मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स पढ़ रहा हूं। विच मीन्स वेरी सिंपल, इफ यू अटेंडेड संडेज क्लास, डिस्टेंस टाइम, द वेरिएबल स्लोप मतलब स्लोप शुड चेंज, मतलब स्लोप शुड वेरी। यस और नो? वेरिएबल मतलब चेंज हो रहा है, तो अब या तो ग्राफ बनेगा ये, या द ग्राफ कैन बी दिस। बोथ इंडिकेट्स नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब जिन्होंने संडे की क्लास लगाई थी उनके लिए तुम सुनो, ये ग्राफ बताया था जब इसकी स्लोप इंक्रीजिंग है, याद आ गया? और ये ग्राफ था दिस इंडिकेट स्लोप डिक्रीजिंग है। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, जिन्होंने संडे के लेक्चर मिस किया तो नोट्स कॉपी नहीं किए, जो संडे का लेक्चर मिस किया तो नोट्स कॉपी नहीं किए, प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है बड़े भाई की तरह, प्लीज नोट्स कॉपी कर लेना, बहुत तगड़ा लिखाया था। आपके हर बैच में किसी ना किसी के पास नोटबुक होगी, इससे उधार ले लो, फोटो मंगवा लो, कल आओगे तो कर लेना। ओके, तो दिस इंडिकेट स्लोप इंक्रीजिंग। अब डिस्टेंस टाइम की स्लोप क्या देती है? स्पीड। तो दिस इंडिकेट स्पीड इज इंक्रीजिंग एंड दिस इंडिकेट स्पीड इज डिक्रीजिंग। दोनों केसेस में स्पीड चेंज हो रही है, तो दोनों ही नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। पहला ग्राफ है फिगर 3। फिगर 3 का मतलब है बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, 10 से 20, 20 से 30 स्पीड बढ़ रही है। केस फिगर 4 का मतलब है बॉडी की स्पीड घट रही है, मतलब वो रिटार्ड कर रही है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, दिस इज एक्सेलरेशन बिकॉज स्पीड इज इंक्रीजिंग, दिस इज रिटार्डेशन बिकॉज स्पीड इज डिक्रीजिंग। बट दिस बोथ, अगर एग्जाम में सिर्फ यह आए ड्रॉ द ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ डिस्टेंस टाइम, तो आप दोनों में से कोई भी बना सकते हो, एग्जामिनर कैन नॉट डेयर टू डिटेक्ट योर मार्क्स। फर्क क्या है मैंने बता दिया, this is non-uniform motion but the speed is increasing because I gave the reason also। speed increase क्यों कर रही है? because slope increase कर रही है। टेंजेंट वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाया था संडे को। एंड राइट हैंड साइड पे टेंजेंट डिक्रीज कर रहा है बिकॉज एंगल्स धीरे धीरे पैरेलल हो जाएगा लाइन, तो ये स्लोप डिक्रीज कर रही है, देखो स्पीड डिक्रीज कर रही है।
इज द कॉन्सेप्ट क्लियर? सर अगर जो स्पीड है वो एक बार 5 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 6 है, तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा? दोबारा बोल बच्चे, वैल्यूज बोल दोबारा। सर अगर स्पीड मतलब फिक्स नहीं है, मतलब असेंडिंग डिसेंडिंग मतलब हाँ कुछ तो नहीं है, ऐसा मतलब। बनता है, कुछ कुछ ऐसा कुछ भी बन सकता है। देख, रेड कलर से मैंने दिखा दिया। ओके सर। अगर तू ये कह रही है ना, ना कोई पैटर्न नहीं है, ना यस। इंक्रीजिंग का फिक्स है, कभी 5 है, कभी 10 है, कभी 50 होगी, कभी 2 होगी, तो कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं, कोई भी रैंडम सा कर्व बन जाएगा बेटा। इट विल नॉट बी अ, बट इट कैन बी एनी शेप, एनी कर्व, नॉट अ स्ट्रेट लाइन। ओके सर। So guys, last 1 minute of the lecture before we end today's session. I think so I hope you enjoyed the class. I did not want to have it a 1.5 hour 2 hour class. Online is tiring also, and online is needs more attention, because अगर एक बार भी attention हटे तो काम खराब हो जाता है. धीरे धीरे I'll train you how to attend these classes. I'm sure that धीरे धीरे हमारा एक दूसरे से प्यार भी बढ़ेगा, and will be more attached. My only request to all of you is, as a mentor now, it's not about physics in life, it's about building right habits in life. I just want Genesis students to stand out in the in schools and in markets. So whenever this is the great time, you are at a very must age where you should focus upon building right habits better. When I say right habits, matlab least screen time better. Don't have a screen time of more than 1 hour every day. I'm not counting this class as a screen time. This is a productive session. But you are scrolling Instagram, Reels, games, mobile games, YouTube Shorts, Snapchat. Don't go towards barbadi. I'll be very honest with you. And if you are very sincere or serious, अगर sincere हो तभी क्लास लगाने आए हो रात को. अगर genuinely करियर को लेकर sincere हो, अच्छा करना चाहते हो लाइफ में, मेहनत करके आगे बढ़ना चाहते हो, and you want to make yourself proud. I never say you want to make your parents proud. Never. You should always make yourself proud. Then you have to stop acting like a jerk. You have to start focusing. तो पूरा पूरा दिन छुट्टियां चल रही हैं, पूरा पूरा दिन टाइम वेस्ट करते हो. If you want to, if you don't know what to do, read good books beyond academics. Read, make an habit of reading. मैं ग्रुप्स पे 3-4 बुक्स के नाम भेज दूंगा. With that, every teenager should start reading. If you want to spend time on listen to good podcasts, if you know what is a podcast, I'll give you 2-3 links which every young student should listen to the podcast. कोई हॉबी है उसको परस्यू करो. पेंटिंग करते हो उसको पॉलिश करो. क्रिकेट खेलते हो क्रिकेट खेलो. आउटडोर स्पोर्ट्स जरूर खेलो. दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट. बट स्क्रोलिंग अननेसेसरली, रील पे रील्स, एक एक दो दो घंटा, मोबाइल गेम्स is killing your future. That is my only request to all of you. That let's build a great future. मेरे लिए स्कूल के मार्क्स बिल्कुल मैटर नहीं करते. मेरे लिए हैबिट्स मैटर करते हैं. दैट इज वाई जेनेसिस एग्जिस्ट. मजबूरी है, हमें स्कूल के लिए पढ़ाना पड़ता है, बिकॉज पेरेंट्स को नंबर चाहिए अनफॉर्चुनेट. अगर मेरा बस चले, मैं सिर्फ माइंडसेट पढ़ाऊँ बच्चे को, माइंडसेट जिंदगी में कामयाब कैसे है. जपरीन, यू वांट टू आस्क समथिंग, you raise your hand. सर नेक्स्ट क्लास ऑफलाइन ले लो, ऑफलाइन को ज्यादा वोट्स आए हैं। आई अंडरस्टैंड बेटा, बट चांसेस बहुत कम है ऑफलाइन के, बिकॉज अभी नेक्स्ट क्लास में आई हैव टू, अभी तक मैंने जीरकपुर बैच के बच्चों को इंक्लूड नहीं किया. सो अभी उनके साथ मैं उनकी एक ऑफलाइन क्लास लेने जाऊंगा. उनको 1-1.5 घंटे में 9th के बच्चों को आपके पैरेलल करूंगा. देन उनको इकट्ठा आपके साथ बराबर कर दूंगा, बिकॉज जरकपुर के लिए दूर है जेनेसिस 15-20, एंड आप लोगों के लिए जरकपुर बहुत दूर हो जाएगा. सो आई डोंट वांट टू टॉर्चर एनीवन. एंड ऑल्सो मेरे लिए तीनों बैचेस के बच्चे बिल्कुल बराबर है. आई कांट बी पार्शल टू पंचकूला ब्रांचेस, दैट ये तो बच्चे अटेंड कर लें साहिल सर की क्लासेस एंड दे कैन मिस, और वाइस वर्सा. मैं ये भी नहीं करूंगा कि मैं जरकपुर में ऑफलाइन ले लूँ और आपको वहां बोलूँ आपको आने के लिए. यू वुड नॉट ऑल्सो नॉट लाइक इट. So we have to find a way where all the Genesis students win, not just 15 branch or 20 branch or Zirakpur. You're my army. You're 9th class Genesis army, and all of you are Genesis army. So वो भी मेरे लिए उतने important है. I understand offline में चीजें बहुत different होती हैं. Obviously I completely understand that. But जब मुझे मौका मिलेगा मैं आपको वैसे ही सबको मिलने आ जाया करूंगा ऑफलाइन. 15 वालों को तो मैं मिल ही लेता हूँ, बट कम मिलता हूँ बहुत. बट अब मैं धीरे धीरे 9th में मिलते रहूंगा सबको.
Am I clear? But coming back, guys, Yes, sir. feel that this is the best age to build right habits. I'll talk about this in the next workshop. All of you guys, good night, guys. I'll send you the notes. Do revise it. Love you guys. God bless you. Thank you, sir. Bye to karo. Thank you, Thank you, sir. sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Bye, guys. Bye. Take care.